Um, good Started. good morning, dear students. Today we are doing chapter number 6, simplification of numerical expressions. Yes. So, dear students, we have already done in exercise 6.1 D mass. D mass concept you know very much, like D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. Now today we are doing BOD mass. This is the concept of exercise 6.2, and this is very important concept bete BOD mass. We will solve each and every question according to this formula BOD mass. Clear? So let's start. Step by step we will solve. First of all, B stands for bracket. B का क्या मीनिंग है? B से है bracket. O stands for off और off का मीनिंग है multiply. ऑफ आप ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर फ्रैक्शन में बेटे, जहां पे हमने ऑफ का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में किया था, लाइक 2/3 ऑफ 5. ऑफ का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. So according to BOD mass, we will solve each and every question. We will follow same sequence. Like first of all, whenever the question of bracket, so first of all we will solve bracket. Then off mean multiplication. Then D mass is very much clear to everyone. Clear, bete? Wait. Next slide, BOD mass. Next slide में here only two concepts are new. D mass you know very much, but only two concepts are new, B and O. So B stands for bracket. Or here are four types of brackets. Four types of brackets are there. Number one, bar bracket. बार ब्रैकेट क्या है बेटे? आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक लाइन है, टॉप पे लाइन है. सपोज करो आपको कोई भी नंबर गिवन है, लाइक नंबर 45. क्लियर? तो 45 डिजिट के ऊपर जो लाइन होएगी दैट इज द बार ब्रैकेट. 45 और एक और नंबर के ऊपर जो लाइन होएगी दैट इज कॉल्ड बार ब्रैकेट. क्लियर? तो सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट रिमूव करना है. सेकेंड नंबर पे है स्मॉल ब्रैकेट. एंड आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि बार ब्रैकेट किसको कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट किसको कहते हैं. क्लियर? थर्ड इज कर्ली ब्रैकेट and fourth one is rectangular bracket. So here are four types of brackets: bar bracket, small bracket, curly bracket, rectangular bracket. Clear? Or same you will follow the same sequence whenever you solve the questions. Like अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन में 2-3 ब्रैकेट्स हैं. क्लियर? लाइक आपको क्वेश्चन में एक तो स्मॉल ब्रैकेट गिवन है और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. तो सीक्वेंस क्या फॉलो होगी? सेम, कि अगर बार ब्रैकेट मिसिंग है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ब्रैकेट, एंड इफ कर्ली ब्रैकेट इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन देन वी विल skip the curly bracket. After small bracket we will solve the rectangular bracket. Clear? Whenever we have to solve the simplification, first of all we will solve the bracket and four types of brackets. Yes. So let's start. In today's lecture, we will do the concept of only bracket. Of we will do in next lecture. Today we will solve the question related with B. B means bracket, or four types of brackets are there. So dear students, you must be note down the question. Whenever the question on your screen ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो. See here, क्वेश्चन है आपके पास 5 मल्टीप्लाई, स्टार्ट कर दो बेटे. 5 मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. सी हियर बेटे, these types of questions are given to you. Here are in this question two types of brackets are given. Like small bracket given है
और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट गिवन है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि अच्छा इसमें हमें डिवीजन नहीं मिला तो चलो मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं, नो, अकॉर्डिंग टू BODMAS वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इस क्वेश्चन में जो बार ब्रैकेट है वो गिवन नहीं है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ब्रैकेट, क्लियर। तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 17 minus 12 small bracket close and rectangular bracket close. Clear? Yes बेटे, ये this is the just one of the example. Clear? ये एक एग्जाम्पल है। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? सिंगल सिंगल स्टेप आप मेरे साथ करोगे, सिंगल सिंगल स्टेप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, वी शुड रिमूव द स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट की टर्न है, तो वी शुड रिमूव द स्मॉल ब्रैकेट। शाबाश, आप अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करो। अदर्स नंबर विल रिमेन सेम, जो दूसरे नंबर होंगे बेटे वो सेम रहेंगे, लाइक 5 का 5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 13 माइनस का साइन सेम। क्लियर? तो 17 माइनस 12 इन दोनों की कैलकुलेशन करो बेटे। जो यस, वन थिंग मोर, जब हम पहले करते थे कि डी मास के अकॉर्डिंग हम कहते थे कि पहले हम डिवीजन करेंगे, सब्ट्रैक्शन की टर्न लास्ट में है, बट व्हेनेवर वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स, तो जो ब्रैकेट के बीच में साइन है हम उसी को सॉल्व करेंगे। लाइक यहाँ पे 17 माइनस 12 है तो वो आ गया 5। सचित बेटे आप ना स्टेप बाय स्टेप मुझे आंसर करो, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप कोई भी बच्चा कलेक्टिव आंसर मत करना, ठीक है। 17 माइनस 12 आ गया 5। क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे सॉल्व करो बेटे। आप जब साथ एक एक स्टेप को मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ओके, नाउ वी विल रिमूव द स्मॉल ब्रैकेट। क्यों रिमूव हो गई है? क्योंकि हमने 17 माइनस 12 की कैलकुलेशन कर ली है, उसका आंसर आया हमारे पास 5। नाउ मूव टू सेकंड स्टेप, राइट इन चैट बॉक्स सेकंड स्टेप का आंसर कि इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई। अब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो नंबर है उसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में, 13 माइनस 5। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करो, वेरी गुड, गुड। कि 13 माइनस 5 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का आंसर आया हमारे पास, यस 8। 13 minus 5 8। Now here no need to again put the rectangular bracket। यहाँ पे आप दोबारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाओगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। जब आप एक बार उसकी कैलकुलेशन कर लोगे ना तो वी शुड रिमूव। क्लियर? नाउ सिंपल, ओके आई विल रिपीट अगेन बेटे। तो 5 का 5 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, 13 माइनस 5 का आंसर आया 8। तो 5 8s आर 40। वेरी गुड, शाबाश। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। लाइक मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever these types of questions, first of all we should remove the brackets। और कौन सी ब्रैकेट? फर्स्ट सीक्वेंस है बार। अगर बार ब्रैकेट इज नॉट गिवन देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? तो 17 माइनस 12 के अंदर जो था कैलकुलेशन वो हमने कर ली है, वो 5 आई। तो उसके बाद करली ब्रैकेट की टर्न है, बट करली ब्रैकेट इज नॉट इन द इन दिस क्वेश्चन, तो वी विल फॉलो द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की कैलकुलेशन कर ली, 13 माइनस 5 8। आफ्टर दैट 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 40। नाउ राइट इन चैट बॉक्स कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। मैम दिस इज द एग्जांपल, यस यू मस्ट नोट डाउन बेटे, यू मस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चाहे ये एग्जांपल है बेटे, बट आपको इसको सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। अब आप जब सॉल्व कर लोगे तब
तो कोई है ही नहीं कि आपने इसको नोट डाउन नहीं करना, बिकॉज आप तो नोटबुक पे कर ही रहे हो। वेरी गुड। ओके, so move to next question. Yes, this is the exercise 6.2. In 6.2, question number 8. Yes, you can take screenshot also. ले सकते हो बेटे. Okay. Once again, रूहानी चावला के नेम से जो भी बच्चा है बेटे, I will explain again. जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. क्लियर? तो 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है. Start to note down the statement. शाबाश, जल्दी से नोटबुक पे अपनी स्टेटमेंट नोट डाउन करो और स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करनी है. ओके, तो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. हियर द numbers are in mixed fraction or improper or proper fractions are given and three types of brackets are given. कौन कौन सी ब्रैकेट्स गिवन है? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. विनायक बेटा जी 119 आप जो ओके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर लिख रहे हो. गुड. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन में जितनी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, convert the mixed fraction into improper fraction like Vinayak has given the answer in chat box. कि 14 8s are multiply किया 112, then उसमें 7 प्लस तो 119 by 8. सबसे पहले आपने बेटा जितनी भी इस क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो. शाबाश, हरी अप. वेरी गुड. 33 चेक कर लेते हैं किसका कर रहे हो आप. 33 तो कहीं भी नहीं है. 32 क्या है? 32 14 8s are 112 plus 7 119 divide by 8 minus rectangular bracket 3 2s are 6 6 plus 1 7 by 2 7 by 2 curly bracket start 8 17 by 24 है बेटे. सबसे पहले आप अपने रफवर्क में 24 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, देन आप उसमें 17 ऐड कर दोगे. 17 ऐड कर दोगे. जल्दी से करो ये कैलकुलेशन. 8 17 बाय 24 नहीं 207 नहीं है बेटे, 209 है ये. Smith, check your calculation again. 209 by 24 है. वेरी गुड. यस. उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? राइटिंग चैट बॉक्स. शाबाश. फर्स्ट स्टेप तो भी आंसर दिया. writing chat box bit I am not able to understand what you want to say. Yes, Kapish, very good. Small bracket सबसे पहले हमने रिमूव करनी है स्मॉल ब्रैकेट. ओके, तो स्मॉल ब्रैकेट की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो. 4 by 3 माइनस 1 by 2. सिंपल, आप अपने रफ वर्क में पहले क्या चीज कैलकुलेट करोगे? 4 by 3 माइनस 1 by 2. शाबाश, मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स चाहिए. 4 by 3 minus 1 by 2. Here, this is an unlike fraction. Denominators are different. So first of all, I don't know how to put curly bracket to practice. Curly bracket में क्या है बेटे? आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगी. इतनी कोई टफ नहीं है कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करनी. शाबाश. ये सिमर धमीजा के नेम से कौन है बच्चा? 5 by 6 आंसर इज राइट. वेरी गुड, वेल डन बेटे. जो भी स्टूडेंट है, आई डोंट नो द नेम. 5 by 6 इज द आंसर, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो इसका आंसर आएगा यस. सी हियर. शाबाश. 119 by 8 minus rectangular bracket start 7 by 2 plus
करली ब्रैकेट 209/24 माइनस, अब हमारी स्मॉल ब्रैकेट की कैलकुलेशन हो गई है, तो आंसर जो है सिंपल आप कर दोगे, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखोगे। क्लियर? 5/6। ओके, राइट इन चैट बॉक्स विच ब्रैकेट नाउ वी विल रिमूव। नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम? राइट इन चैट बॉक्स। Only 2 student has given the answer. Only 2. What other are doing? Very good. Curly bracket. चलो फिर start to calculate the 209 divide by 24 minus 5/6. जल्दी से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करो और राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। कर्ली ब्रैकेट का आंसर राइट इन चैट बॉक्स। इसकी कैलकुलेशन आप रफ वर्क में करोगे बेटे। 24 और 6 का सबसे पहले ले लो आप एलसीएम। क्लियर? तो ये एलसीएम आएगा 24। वेरी गुड, सभी बच्चे करो। 24 और 6 का एलसीएम हो गया 20। राइट ओनली द आंसर ऑफ एलसीएम। सॉल्व क्वेश्चन। विनायक आंसर अभी भी रॉन्ग है बेटे, कुछ मिस्टेक है, चेक करो। और इसमें 24 डिनोमिनेटर है, 24 डिनोमिनेटर है बेटे। 6 और 24 का जो एलसीएम है वो 24 आएगा। शाबाश, वेरी गुड। सिमर बेटे, सिमर के नेम से बेटे आपका एलसीएम करेक्ट है, बट 179 इज रॉन्ग। चेक योर कैलकुलेशंस अगेन। 214 भी रॉन्ग है। वेरी गुड। वीरेंद्र मिश्रा के नेम से जो भी स्टूडेंट है, आंसर इज राइट। 189 डिवाइड बाय 24। वेरी गुड। नाउ विनायक योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड। हरी अप। यस, आरती शर्मा के नेम से जो भी स्टूडेंट है, परीक्षा, वेरी गुड। यस, गुड। तो आपने कैलकुलेट कर लिया है कर्ली ब्रैकेट। नाउ नो नीड टू पुट द कर्ली ब्रैकेट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्लियर? तो other number will remain same, like 119 divide by 8 minus rectangular bracket 7/2 plus का साइन। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट का आंसर आया बेटे, वो हमने साथ में लिख दिया 189/24। शाबाश। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, राइट इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, पहले ही लिख दिया, इनको पता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। वेल डन बेटे, शाबाश। ओके, चलो कैलकुलेट करो फिर। 7/2 प्लस 189/24। हरी अप। 7/2 प्लस 189/24। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करो। हियर 24 इज द एलसीएम। विनायक, 24 is the LCM, not 26. Yes, you have to find the LCM of 24 and 2. Yes, Ghazal. So find. Oh, खुशनाक ने आंसर कर दिया। वेरी गुड, शाबाश। Hurry up, all of you. Solve this question. Very good. 274. बेटे check your calculation once again. Two 73. Yes, very good. Very good. So 119/8 minus 273/24। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप ना मैंने कंबाइन कर दिया। आप अपना अपनी नोटबुक पे पहले सॉल्व करो कि 8, अब सभी ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं। क्लियर? अब क्या है? ओनली द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। कौन से 2 फ्रैक्शनल नंबर्स हैं? 119/8 माइनस 273/24। स्क्रीन इज विजिबल बेटे, कैलकुलेट करो। शाबाश, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। 24 और 8 का एलसीएम फाइंड करो। ओके विनायक, आप आंसर कर रहे हो। यस,
अभी भी स्टिल विनायक इसमें कुछ है कि आप 7/2 इज नॉट अ प्रॉपर आंसर. वन स्टेप मोर. Why you have put division? Okay, I'll explain कि क्यों किया मैंने. फर्स्ट सबसे पहले आप 119/8 माइनस 273/24 की कैलकुलेशन करो. जो उसका आंसर आएगा ना बेटे वो है हमारे पास 84/24. ठीक है, 84/24. दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वी विल चेक कि ये किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर. No, this is not a question of your homework. This is extra question of exercise 6.2. Yes, 84 और 24 को कॉमन टेबल पे आपने आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हो ना फ्रैक्शन में. तो यहाँ पे कॉमन टेबल है वो है 12. आप इसमें सिंगल सिंगल स्टेप लेके भी कटिंग कर सकते हो. लाइक 2 से पहले कटिंग कर ली या 3 से कटिंग कर ली. मैंने डायरेक्ट 12 से की है. कॉमन टेबल बिगेस्ट कॉमन टेबल ले लिया. क्लियर. तो 12 7s are 84, 12 2s are 24. तो 7/2 आ गया. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. आंसर आ गया मेरे पास. जो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वेल डन. कि 7/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और फ्रैक्शन का क्या रूल है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो आफ्टर डिवीजन मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आंसर आया हमारे पास वो है 3/1/2. गुड. So I hope this concept is clear to everyone. बेटे one thing more. देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही आपको लगता है कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे. क्लियर. आपने सिंगल सिंगल स्टेप को सॉल्व करना है. लाइक अगर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है तो स्टार्ट फ्रॉम बार ब्रैकेट. बार इज नॉट गिवन तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ब्रैकेट. क्लियर. लाइक जैसे हमने 4/3 और -1/2 का किया. क्लियर. देन स्मॉल ब्रैकेट अगर कैलकुलेट हो गई है तो करली ब्रैकेट. अगर करली ब्रैकेट हो गई है तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Chapter 6 is not visible. Just wait. Yes. My Yes, good morning all of you. Ritu ma'am, shall I start now? हाँ जी मैम. Okay ma'am. Yes, good morning all of you. बच्चे आज आपकी हिंदी की एक्टिविटी है तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनोगे और उसके बाद जो भी आपको एक्टिविटी से रिलेटेड जो आंसर देने हैं वो आपने चैट बॉक्स में देने हैं. ओके. ओके. हम उस दिन जो है वो डिस्कस कर रहे थे होली के त्योहार निबंध के बारे में. आई थिंक अब तक तो सभी बच्चों ने अच्छे से उसको पढ़ भी लिया होगा और वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा. तो स्टार्टिंग हमने बताया था मैंने आपको कि जो होली का त्योहार है वो फाल्गुन मास में आता है. तो फाल्गुन मास कौन से मंथ में शुरू होता है? जैसे जनवरी फरवरी कौन से मंथ में शुरू होता है मैंने बताया था. कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज आंसर अपना. फाल्गुन मास कब स्टार्ट होता है? मार्च, फरवरी, मार्च, ओके. वन आंसर जो है वो करेक्ट आया है कि फरवरी के मिड से जो है ये स्टार्ट होता है और मार्च के मिड में ये जो है खत्म होता है. जब संक्रांति होती है, जब फरवरी में संक्रांति आती है तब फाल्गुन मास जो है वो शुरू होता है. ठीक है.
तो उसकी पूर्णिमा के दिन जो है हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो हमने एक जो है कहानी बताई थी आपको, एक ऐतिहासिक कहानी आपके साथ डिस्कस की थी मैंने कि ये त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी प्राचीन कथा है। तो मैंने बताया था कि हिरण्यकश्यप नाम का जो एक दैत्य होता है वो अपने आप को भगवान मानता है, लेकिन उसका पुत्र जो है उसको भगवान मानने से मना कर देता है, लेकिन वो चाहता है कि वो मेरी जो है पूजा करे। तो वो अपनी बहन को बोलता है कि अगर मेरा बेटा मेरी पूजा नहीं करेगा तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए तुम ऐसा करो, इसको जला दो। लेकिन होता क्या है, होलिका अपने वरदान का गलत प्रयोग करती है। होलिका को वरदान होता है कि वो आग में नहीं जलेगी, वो प्रहलाद को लेकर जो है आग में बैठ जाती है, लेकिन होलिका अपने वरदान का गलत प्रयोग करती है, जिसके कारण जो है होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है। उस दिन से ये त्योहार जो है वो मनाना आरंभ हुआ था। तो उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि इसको हम कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, होली के त्योहार की क्या विशेषता है? होली रंगों का त्योहार है, होली दीपों का त्योहार है, होली फूलों का त्योहार है, होली पंजाब का त्योहार है। यस, होली रंगों का त्योहार है। होली की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि होली रंगों का त्योहार है। जैसे दीपावली को दीपों का त्योहार बोला जाता है, इसी तरह होली की ये विशेषता है कि ये रंगों का त्योहार है। इस दिन जो है रंगों का विशेष महत्व होता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जो है शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, होली के त्योहार पर कौन सी मिठाई विशेष रूप से खाई जाती है? पकौड़ी, जलेबी, गुजिया या हलवा? हाँ जी, मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं और सभी का जो है वो आंसर सही है। इस दिन जो है लोग कौन सी मिठाई खाते हैं? गुजिया। गुजिया जो मिठाई है यहाँ होली के त्योहार की प्रमुख मिठाई है, और विशेष करके स्त्रियां जो है घरों में से खुद बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, कुछ लोग होली के त्योहार को कैसे हानि पहुंचाते हैं? कुछ लोग, उन्होंने बोला था कि इस त्योहार की कुछ लाभ और हानि भी है। तो लाभ तो हमें ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रंग लगाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ये इसकी जो है वो लाभ थे। और उसी के साथ जो है उन्होंने बोला था कि होली के त्योहार पर जो है कुछ लोग इसे हानि पहुंचाते हैं। कैसे? शराब पीकर, उधम मचाकर, रंग फेंक कर, गाने गाकर। हो सकता है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, ध्यान से देखो। वन और 3, 1 और 2। बच्चे ने 4 लिखा है, किसी बच्चे ने। ओके, मोस्टली जो है आंसर सही आ रहे हैं। कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे जो रंगों का त्योहार है तो रंग फेंक कर जो है वो इसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस दिन जो है शराब पीते हैं और शराब पीकर जो है उधम मचाते हैं। उधम मतलब शोरगुल करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वातावरण है जो वो खराब होता है, लोगों को नुकसान होता है या लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग ये त्योहार जो है उसको अच्छा नहीं मानते और इसको अच्छे से मनाते नहीं है। और साथ ही वहां पे बताया गया कि कुछ जगहों पर होली का जब त्योहार मनाया जाता है तो डंडों से एक दूसरे को पीट कर ये त्योहार मनाते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो है किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे इस त्योहार का मजा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमें ये त्योहार जो है वो प्रेम के साथ जो है मनाना चाहिए, एक अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, सभ्यता के साथ मनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है? प्रतिबंध होता है रोक लगानी। सरकार ने कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है? लोगों के घर जाने पर, गुब्बारे फेंकने पर,
शराब की दुकानों पर रंग लगाने पर। किन चीजों पर रोक लगाई गई है सरकार की तरफ से ताकि ये त्योहार जो है लोग अच्छे से मना सके, इस दिन कोई किसी भी तरह का जो है लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सरकार क्या करती है इसके लिए? लोगों को घर जाने पर मना करती है, गुब्बारे फेंकने पर मना करती है, शराब की दुकानें बंद रखी जाती हैं, रंग लगाने पर मना करते हैं। हो सकता है 2 आंसर्स हों इसमें। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो बच्चे, 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं। यस, बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ एक ही ऑप्शन लिख रहे हैं, कुछ 2 ऑप्शन लिख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके, यस बच्चे, हमारा सही आंसर है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जो सरकार है उसने गुब्बारे फेंकने पर और शराब की दुकानें बंद रखने को कहा होता है। वो बोलते हैं कि गुब्बारे जो है हम एक दूसरे पर नहीं फेंकेंगे, इससे किसी को चोट लग सकती है, और शराब की दुकानें इसलिए बंद की जाती हैं कि लोग शराब पीकर किसी भी तरह का उधम ना मचाए, लोगों को, दूसरे लोगों को परेशानी जिससे हो वैसी कोई भी परिस्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए शराब की दुकानें बंद रखी जाती है और गुब्बारे फेंकने पर मनाही है। तो यहाँ पर हम क्या त्योहार में हम लिखेंगे कि हमें ये त्योहार जो है वो खुशी खुशी मनाना चाहिए और सभ्यता के साथ मनाना चाहिए। हमें इसे ऐसे मनाना चाहिए जिससे किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई इंसान जो है वो अपने काम के लिए जा रहा होता है तो हम उसके ऊपर रंग फेंक देते हैं। ये चीजें गलत हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार जो हैं आपके साथ होली खेलने आए हैं तभी आपको होली खेलनी चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट है, होली का त्योहार किसका प्रतीक है? धर्म पर अधर्म की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का, सत्य पर झूठ की विजय का, होलिका की विजय का। ध्यान से पढ़ो बच्चे आंसर दे रहे हैं और मोस्टली गलत दे रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ, बच्चे फर्स्ट कुछ 4 लिख रहे हैं, कोई 3 लिख रहा है। ध्यान से पढ़ो, पहले लाइन को समझो। धर्म पर अधर्म की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का, सत्य पर झूठ की विजय का, होलिका की विजय का। बच्चे लाइन के मतलब को समझो। जो बच्चे लिख रहे हैं जल्दबाजी में, पहले लाइन के मतलब को समझो वो क्या बोल रहा है। होलिका की तो विजय हुई नहीं थी, जो ऑप्शन 4 लिख रहे हैं वो तो मर गई थी। अब आंसर ठीक आने शुरू हुए हैं जब दोबारा बच्चों ने पढ़ा। इसलिए बोलती हूँ कि जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके गूगल फॉर्म में भी आते हैं, आप सिर्फ जल्दबाजी में जो है उसको टिक कर देते हो, उसको ध्यान से पढ़ा करो। अब ये ऊपर वाली जो तीनों ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। स्टॉप प्रेजेंटिंग द स्क्रीन पवन कुमार के नाम से, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। आप लोग गूगल फॉर्म में भी यही गलती करते हो, बहुत जल्दबाजी में आंसर देते हो, उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अधर्म पर धर्म की विजय का, मतलब कि असत्य पर सत्य की विजय का। ठीक है, धर्म पर अधर्म की विजय नहीं हुई थी। ठीक है, अच्छाई पर बुराई की विजय नहीं हुई थी। किसकी विजय हुई थी? धर्म की विजय हुई थी अधर्म पर। तो सेकंड ऑप्शन जो है, ध्यान से देखो, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है, अधर्म पर धर्म की विजय का। क्लियर? उसके बाद बच्चे
आपको मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हैं वो करवाए थे, लिंग बदलो हम लोग कर चुके थे और आपको समझाया था कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और पुल्लिंग कौन से होते हैं। इसके बारे में हमने एक्टिविटी क्लास में डिस्कस भी किया था और आप लोगों ने आंसर्स भी दिए थे। आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और पुल्लिंग कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके जो नीचे जो 10 वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग जो शब्द हैं उनको चुनकर लिखना है आपने। पुल्लिंग कौन से होते हैं अब आपको पहले वो समझना है और उसके बाद जो है ऑप्शंस जो है पहले ध्यान से अपनी किसी नोटबुक पर लिखो। नोटबुक पर लिखने के बाद आप चैट बॉक्स में लिखोगे। ध्यान से, अभी भी कुछ जो 2 मेरे पास आए हैं उसमें से 1-2 ऑप्शन गलत हैं। वन 159 लिख रहे हैं सुरेश चोपड़ा के नाम से हैं, सुरेश शर्मा के नाम से, गीतू चोपड़ा के नाम से। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, पुल्लिंग जो शब्द हैं वो आपने चुनने हैं उसमें से। कुछ बच्चे ऑप्शन 9 भी लिख रहे हैं बीच में। ओके, मोस्टली जो है अब मेरे को सही जो है वो रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। सरगुनप्रीत बच्चे पूरे पढ़ो, आपने सिर्फ 3 पुल्लिंग बताए हैं, पूरे पढ़ो, 3 से ज्यादा है। जो बच्चे 9 लिख रहे हैं, 9 जो लिख रहे हैं वो गलत है। अगर किसी में कंफ्यूजन होती है ना बच्चे, उसका लिंग बदल कर देख लिया करो। डिबिया का अगर आप लिंग बदलोगे तो वो क्या बनेगा, डिब्बा। तो डिबिया जो है वो स्त्रीलिंग है। किसी में कंफ्यूजन होती है तो उसका लिंग बदल कर देख लिया करो। ओके, मोस्टली जो है आंसर्स आ रहे हैं और मैं बार बार यही बोलती हूँ बच्चे, आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो पूरी अच्छे से जो है आपको पार्टिसिपेट करना है। सभी की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई बात नहीं अगर आप गलत भी लिख रहे हो, कुछ समझ आएगा आपको उसके बाद। ठीक है, जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कैसे। ओके, मोस्टली अब मेरे को आंसर्स जो हैं वो सही आ रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं इसको। पहला है गायिका। गायिका का अगर हम लिंग बदलेंगे तो वो क्या होगा, गायक। तो गायक जो है वो पुल्लिंग है, गायिका क्या है, स्त्रीलिंग। तो फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद नायक, नायक का हम लिंग बदल कर देखते हैं तो होता है नायिका। नायिका स्त्रीलिंग है तो नायक क्या होगा, पुल्लिंग है। तो नायक हमारा करेक्ट है। उसके बाद श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमती। तो श्रीमान यहाँ पर करेक्ट है। मामा, मामा का अगर हम लिंग बदलेंगे तो बनेगा मामी। तो मामा जो है वो करेक्ट है। ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, नहीं, ये है स्त्रीलिंग। अगर इसका हम लिंग बदलेंगे तो वो बनेगा ठाकुर। तो हमारा 5th वन जो है वो रॉन्ग है। पंडित करेक्ट है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। युवक करेक्ट है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, युवती। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बच्चे युविका लिख के जाते हैं, युवती होता है, युविका नहीं होता है। ओके, उसके बाद भाई का बहन होता है तो भाई क्या है, वो पुल्लिंग है। डिबिया जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि डिबिया का पुल्लिंग होता है डिब्बा। उसके बाद सुनार जो है वो पुल्लिंग है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग होता है सुनारिन। ठीक है, अच्छे से पहले उसको पढ़कर उसका लिंग बदल कर देखो तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन चैट बॉक्स।
If you have any doubt, you can write in chat box, बच्चे. आपको पहले अच्छे से उसको लिंक बदल कर देखना है और उसके बाद ही आपने जो है आंसर करना है. मैम वेट फॉर अ मिनट. मैम बीच में कॉल आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया. Vinayak, beta, after the Hindi class, I will explain your doubt. Okay, I will clear your doubt. Wait. Ma'am, my screen is visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग चुनने हैं. अब आपको मैंने बता दिया है कि हमें कैसे जो है वो चुनने होते हैं. अब आपने इसको पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें से चुनने हैं. शब्द मैं बोल रही हूँ आपके लिए: युवती, मामी, श्रीमान, महोदय, शिष्या, सेठ, हथिनी, पति, लड़की, स्त्री. आपने स्त्रीलिंग शब्द चुनने हैं. वेरी नाइस. इस बार आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सही आ रहे हैं. अब आपको पता चल गया कि हमने उसको लिंक बदल कर देख लेना और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हम पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं और कौन सा शब्द हम स्त्रियों के लिए प्रयोग करते हैं. क्लियर? अगर हम लिंक बदल कर देख लेंगे तब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी. इसलिए मेरे को अब मोस्टली जो आंसर्स हैं वो सही आ रहे हैं. वेरी गुड स्टूडेंट्स. बच्चे सभी ने ट्राई करना है. रूहानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रूहानी म्यूट योरसेल्फ. मोस्टली जो है बच्चे आंसर सही लिख रहे हैं. वेरी गुड बच्चे. अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर हम लिंग बदल कर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वो पुरुषों के लिए प्रयोग होता है तो स्त्रियों के लिए. पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्रियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1 युवती, ऑप्शन नंबर 2 मामी, ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो रॉन्ग है क्योंकि वो पुल्लिंग है. ऑप्शन नंबर 5 शिष्या जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 6 जो है वो रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर 7 हथनी जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 8 जो है वो भी रॉन्ग है और 9, 10 जो है वो करेक्ट है. लड़की और स्त्री हम स्त्रियों के लिए ही प्रयोग करते हैं. क्लियर? ओके. अब हम नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ चलते हैं. उसके बाद हमने एक वचन और बहुवचन करने हैं. हमने वचन बदलो किया था. आपको बताया था कि जब हम एक चीज के लिए, एक स्थान के लिए या एक प्राणी के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कौन से होते हैं? एक वचन. जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं किसी शब्द को तो वो बहुवचन कहलाते हैं. ठीक है? तो अब आपने इस लिस्ट में से जो है एक वचन शब्द चुनने हैं. एक वचन शब्द चुनने हैं. कौन कौन से हैं आपके लिए मैं पहले ये बोल रही हूँ. मैम माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Screen is visible. Beta, check your network connection. Screen is Yes, visible. ma'am. Okay. आपके लिए मैं वर्ड्स जो है वो बोल रही हूँ. थैला, चूहिया, दरवाजे, दवार, खिड़कियाँ, मिठाइयाँ, सेब, चम्मच, कपड़ा, दुकानें. आपने एक वचन
चुनने हैं। सेम वही ट्रिक है, एक वचन से बहुवचन बनाओ तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं। सभी वर्ड्स के जो है वचन बदल कर देखो, आपको उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपकी राइट ऑप्शंस कौन सी हैं। बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं 1 2 4 7 8 9। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ो बच्चे, सभी वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो तभी आपको क्लियर होगा। और ध्यान दिया करो, जब य को आ की मात्रा होती है तो ऊपर जो है चंद्र बिंदु आता है जब हम बहुवचन में चेंज करते हैं। इन चीजों का खास ध्यान रखना है आपने। अगर आप बिंदु और चंद्र बिंदु की मिस्टेक करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। बिंदु का और चंद्र बिंदु का विशेष ध्यान रखना है आपने। जब भी आप वचन बदलते हो तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखोगे आप। ओके, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यस, 1 2 4 7 8 1 2 4 7 8 9। ओके, 1 2 4 7 8 9। मोस्टली जो है बच्चे आंसर दे रहे हैं 1 2 4 7 8 9। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं, ये एक वचन शब्द कौन कौन से हैं। थैला जो है वो एक वचन शब्द है। सेकंड, चूहिया जो है वो एक वचन शब्द है। दरवाजे जो है वो बहुवचन है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। दवात जो है वो एक वचन है। खिड़कियां बहुवचन है, ये भी रॉन्ग है। मिठाइयां जो है वो भी बहुवचन है, ये भी रॉन्ग है। 7 नंबर सेब जो है वो एक वचन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। चम्मच ये भी करेक्ट ऑप्शन है। कपड़ा ये भी करेक्ट ऑप्शन है। 7 8 9 जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं और 10 जो है वो रॉन्ग है। तो इसके जो सही आंसर्स हैं वो हैं 1 2 4 7 8 9। दोबारा देख लो, 1 2 4 7 8 9। यस, लास्ट क्वेश्चन इज, अब आपने बहुवचन शब्द चुनने हैं। अब इन शब्दों में से आप बहुवचन शब्द चुनोगे कि कौन कौन से आपके बहुवचन शब्द हैं। थालियां, टोकरियां, सिठानी, विद्यालय, साड़ियां, किताबें, पेंसिल, दिन, तारे, सरकारी। अब इसमें से आपने चुनना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ओके, 1 2 5 6 9 10। ओके, 1 2 5 6 9 10 मोस्टली आंसर्स दे रहे हैं बच्चे। और मेरे को उन्हीं बच्चों के बार बार आंसर आ रहे हैं जो पहले दे रहे हैं। कुछ बच्चे आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्यों? ट्राई करोगे कोई बात नहीं, गलत ही हो जाएगा ना, ट्राई तो करके देखो। और ये तो कोई इतनी मुश्किल है भी नहीं है, आपने इतने अच्छे से लिंग बदलो वचन बदलो जो है लर्न किए हुए हैं। 1 2 5 6 9 10। ओके, मोस्टली जो है बच्चे आंसर दे रहे हैं और मोस्टली सभी बच्चों के आंसर ठीक हैं। कुछ बच्चों के बीच में से आंसर, ध्यान से देखो बच्चे एक बार। वन टू फाइव सिक्स 9 10। ओके, यस, तो हमारे जो सही आंसर्स हैं वो हैं 1 2 5 6 9 एंड 10। फर्स्ट है थालियां, थालियां बहुवचन है। टोकरियां बहुवचन है। सिठानी जो है वो एक वचन है। विद्यालय जो है वो भी एक वचन है। साड़ियां बहुवचन है। किताबें बहुवचन है। पेंसिल और दिन जो है वो एक वचन है। तारे और सरकारें बहुवचन है। अब आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं बच्चे, क्योंकि जब आप गद्यांश करते हो ना तो क्या होता है, फिर वो एक शब्द लिखकर बोल देते हैं कि उसका बहुवचन बनाओ, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि बहुवचन है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुवचन क्या होते हैं, एक वचन क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं और पुल्लिंग क्या होते हैं। दोबारा सारे जो चारों हैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जो स्त्रियों के लिए प्रयोग होते हैं। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जो
पुरुषों के लिए प्रयोग होते हैं। एक वचन वो शब्द होते हैं जो एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। बहुवचन वो शब्द होते हैं जो एक से ज्यादा वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के लिए प्रयोग होते हैं। इन चीजों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपको कोई डाउट है? यस गायत्री मैम, एक्टिविटीज आर ओवर मैम। Okay, ma'am. May I stop? अब आपको कोई डाउट है बच्चे तो आप मेरे से पूछ सकते हो।